Hello all, welcome to the Sound of Education. So here in this session we are going to discuss about the decision tree in regression. ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर 28 में हमने डिस्कस किया था डिसीजन ट्री अल्गोरिदम इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन, और आज हम डिस्कस करेंगे डिसीजन ट्री इन रिग्रेशन प्रॉब्लम. As we know that the decision tree we can use in the both the cases, that is the classification case as well as the regression case, or we can say the classification problem as well as the regression problem. So by using decision tree as output, we can get the categorical output as well as a न्यूमेरिकल आउटपुट. वो हमने लास्ट जब क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था तब वहाँ पे भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था. So particularly here we are going to discuss about the how this decision tree works in case of a regression problem, or we can say here how we'll get the numerical output in case of this decision by using this decision tree algorithm. So here let's start the today's session, which is on decision tree in regression. So here again these are the some important point which are related to the decision tree algorithm in case of a regression problem. So here first point is decision tree builds a regression or classification model in the form of tree structure. Now we know that the decision tree is used for the classification as well as the regression to form a tree structure. Here next point is it breaks down the data set into the smaller subset, while at the same time associated the decision tree is a incremental developed. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारे फीचर्स है उसको वो स्मॉल डेट सबसेट में उसको डिवाइड करते जाएगा, उसको स्प्लिट करते जाएगा, और इस तरीके से आपका जो डिसीजन ट्री है वो बिल्ट होते जाएगा. सो हियर you must have to remember here that in case of a classification we can split on the basis of entropy and information gain. बट जब हम रिग्रेशन के केस में जब हम डिसीजन ट्री यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्शन ये एक टर्म है वो हम यूज़ करते हैं जब हम स्प्लिट करते हैं डेटा. ठीक है, वो आगे हम समझेंगे. फिर से आपको ये सारी चीज़ें पता है, डिसीजन नोड आपको पता है, लीफ नोड आपको पता है. सो दिस इज़ द डेटा सेट जो हमने लास्ट क्लासिफिकेशन के टाइम पे देखा था, वही सेम डेटा है. बट यहाँ पे जो टारगेट जो है आपका टारगेट वेरिएबल जो है वो चेंज हो गया है. यहाँ पे टारगेट वेरिएबल में आपके न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे 26, 30, 48, 46. लास्ट अगर क्लासिफिकेशन में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरिकल आउटपुट था, जैसे आपको यस और नो की कैटेगरी में आपको आउटपुट चाहिए था. बट यहाँ पे आपको आवर्स प्लेड की कैटेगरी है, मतलब आपका एक नंबर आएगा कितने आवर्स खेला है, कितने घंटे तक वो खेल सकता है अगर कंडीशंस ये है तो. ठीक है, तो उस तरीके से हमें ये न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा एज अ आउटपुट. और हमें ये पता है कि रिग्रेशन के केस में हमें आउटपुट जो है वो न्यूमेरिकल मिलता है, कंटिन्यूस आउटपुट मिलता है. ठीक है, सो हियर अगेन डिसीजन नोड आउटलुक हैज़ 2 और मोर ब्रांचेस, जो हमने देखा था रेनी, ओवरकास्ट एंड सनी. नाउ हियर द target variable is changes. So target variable is hour played, which is in the form of numerical data. Now here again the leaf node example hours played already represented as represents a decision tree on a numerical target. इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था. Now here the topmost decision node in the tree which correspond to the best predictor called as a root node. तो इन सारे फीचर्स में से हमें जो टॉप मोस्ट जो फीचर्स मिलेगा जिसको यूज़ करके हम फर्दर स्प्लिट करेंगे वो हमारा होगा रूट नोड. ये भी हमने डिस्कस किया था. ठीक है, नाउ हियर डिसीजन ट्री कैन हैंडल बोथ द कैटेगरिकल एंड न्यूमेरिकल डेटा. वो भी हमें पता है बिकॉज द डिसीजन ट्री algorithm we can use for the classification as well as a regression. That's why we'll get the categorical and numerical data, right? Now next is algorithm use. लास्ट क्लासिफिकेशन के केस में हमने जब देखा था तब ID3 algorithm यूज करते हैं, iterative dichotomizer 3. Now here in this case if we are using this
decision tree in case of a regression, again here we are using this ID3, that is iterative dichotomizer 3 algorithm. So here, but the difference is the ID3 algorithm can be used to construct a decision tree. ये decision tree construct करने के लिए use करते हैं for regression by replacing the information gained with the standard deviation reduction. मतलब अगर क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम में हम डिसीजन ट्री बिल्ड करने के लिए इंफॉर्मेशन गेन का यूज़ कर रहे थे, तो जब हम रिग्रेशन की केस में जब हम डिसीजन ट्री बिल्ड करेंगे तब हम इंफॉर्मेशन गेन की जगह पे स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्शन का यूज़ करेंगे, दैट इज SDR। ठीक है, तो मतलब जहाँ पे हम क्लासिफिकेशन की केस में इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट कर रहे थे, वहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्शन कैलकुलेट करना होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्शन वी कैन स्प्लिट द डेटा, राइट? So here you can see we use the standard deviation to calculate the homogeneity of the numerical sample. हम standard deviation भी calculate करते हैं, उससे हमें homogeneity of the sample हमें पता चलता है। उसके बाद if the numerical sample is a completely homogeneous, its standard deviation is 0। अभी ये completely homogeneous मतलब क्या? अगर एक ही कैटेगरी के सारे पॉइंट्स अगर उसमें होंगे तो वो होगा आपका कंप्लीटली होमोजीनियस। जैसे हमने लास्ट इसमें देखा था कि सारे यस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उसका एंट्रोपी आपको 0 मिलेगा। तो उसी तरीके से अगर रिग्रेशन की केस में इफ़ द न्यूमेरिकल सैंपल इज कम्प्लीटली होमोजीनियस, इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0, तो उस केस में आपका रिग्रेशन के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू 0 आएगा। अगर सारे जो डेटा पॉइंट्स है वो पर्टिकुलर सैंपल जो है वो अगर एक ही कैटेगरी से है तो, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये डेटा है, हमारे ये टारगेट वेरिएबल जो है आवर्स प्लेट, वो हमारे पास डेटा है। सो दीज आर द वैल्यूज़ जो हमें बताती है कि ये कितने घंटों तक ये खेल सकते हैं अगर उस तरीके की कंडीशन है। तो यहाँ पे 25, 30, 46, 45 दीज आर द वैल्यूज़। सो ये सारी जो वैल्यूज़ है उसको यूज़ करके हम ये जो सारे कैलकुलेशंस है वो कंप्लीट करेंगे। जैसे काउंट करेंगे, मतलब काउंट मतलब टोटल सैंपल्स कितने हैं, तो यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो टोटल 14 सैंपल है, तो नंबर 14 इज़ देयर। नाउ एवरेज मीन, ठीक है। मीन के बारे में हमें पता है, ऑलरेडी हमने स्टैटिस्टिकल फीचर में देखा था मीन कैसे कैलकुलेट करना है। सो मीन हम कैलकुलेट करेंगे। मीन की केस में हमें ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनका सबमिशन करना है, मतलब इसको एडिशन करना है उनका, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कर देना है, तो आपको इसका मीन मिल जाएगा, जिसे हम एवरेज भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी आपको पता है, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार ब्रैकेट के स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल। सो अगर ये आप करोगे तो आपको उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल जाएगा। आप उसे यस कह सकते हो या फिर आप उसे SD भी कह सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, दैट इज CV, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे, वो हमें कहाँ पे यूज़ होगा वो हम आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ बहुत ही इजी वे में आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। ये फॉर्मूले अपने बहुत बार यूज़ किए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। सो इस तरीके से आपका डिसीजन ट्री बिल्ट होते जाता है ID3 एल्गोरिदम यूज़ करके, अगर रिग्रेशन की केस में आप यूज़ कर रहे हो तो। सो यहाँ पे वो जो एग्जांपल है वो हम थोड़ा और अच्छी तरीके से समझते हैं, ताकि आपको डिसीजन ट्री कैसे बिल्ड होता है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्शन वो आपको पता चलेगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे, उसमें और ज़्यादा आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे देख सकते हो आप कि आपने लास्ट इसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया वो मेन डेटा सेट का कैलकुलेट किया, मतलब टारगेट वेरिएबल का कैलकुलेट किया। अभी हमें स्प्लिट करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फीचर्स, जैसे आउटलुक है, टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आउटलुक के लिए कैलकुलेशन करके दिया है। सो आउटलुक में 3 केसेस है, जैसे यहाँ पे ओवरकास्ट है, रेनी है, सनी है। तो ये ओवरकास्ट के लिए हमारे पास 4 सैंपल्स है,
रेनी के लिए 5 सैंपल्स है और सनी की केस में 5 सैंपल्स है। तो इन सैंपल से रिलेटेड डेटा होगा उसमें, तो उस डेटा से हम स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ओवरकास्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर रेनी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर सनी कंडीशन के लिए कैलकुलेट करेंगे। इन तीनों का एडिशन अगर हम करेंगे डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमें उसका एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमें कैलकुलेट करना होगा स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्शन, तो हम डायरेक्टली उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एस डी आर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन बिफोर स्प्लिट, बिफोर स्प्लिट मतलब जो हमने लास्ट इसमें देखा, और आफ्टर स्प्लिट मतलब ये, ठीक है। तो बिफोर स्प्लिट माइनस आफ्टर स्प्लिट अगर करोगे तो आपको एस डी आर का वैल्यू मिलेगा फॉर दिस आउटलुक। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एस डी आर वैल्यू we can observe this SDR value, we can compare this SDR value with other features SDR value, and then we have to decide which features is giving more information or which features is having a higher standard deviation reduction rate, right? सो उसके बेसिस पे हम स्प्लिट करते जाएंगे। तो जैसे इस केस में आप देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले स्टेप 1 में हमने मेन डेटा सेट का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया, जो 9.32 हमने कैलकुलेट किया। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके रखा है 9.32। ठीक है, सो वही सेम है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने किया कि द डेटा सेट देन स्प्लिट अंडर डिफरेंट एट्रीब्यूट, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ईच ब्रांच इज कैलकुलेट। सो स्टैंडर्ड डेविएशन हर एक ब्रांच के लिए कैलकुलेट करेंगे, जैसे ओवरकास्ट, रेनी, सनी के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन के कैलकुलेशन करके रखें। ठीक है, द रिजल्टिंग स्टैंडर्ड डेविएशन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेविएशन बिफोर स्प्लिट। मतलब इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू जो आएगा, मतलब ये तीनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 3, इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू आएगा उसको हम इससे माइनस कर देंगे। मतलब माइनस वो क्या वैल्यू था, दैट इज आई थिंक 7.66। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देंगे 7.66। अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा, दैट इज़ 1.66। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्शन फॉर दिस आउटलुक। तो इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्शन फॉर टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्शन फॉर ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्शन फॉर विंडी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और फिर ये चारों का जो स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्शन होगा वो कंपेयर करेंगे। सो इस केस में आप देख सकते हो, यहाँ पे 166 है, यहाँ पे 0.48 है, यहाँ पे 0.29 है, यहाँ पे 0.28 है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्शन है वो हमें आउटलुक से मिल रहा है। सो जो आउटलुक है वो हम स्प्लिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम ये शुरुआत में है, या इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आउटलुक से हम डिसीजन ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। सो आउटलुक हमारा होगा रूट नोड। ठीक है, तो नेक्स्ट इस पे अगर हम जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा जैसे द एट्रीब्यूट विथ लार्जेस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्शन द इज चूजन फॉर द डिसीजन नोड। सो ये डिसीजन नोड एज अ डिसीजन नोड हमने इसे कंसिडर कर लिया, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्शन जो था वो एज कम्पेयर टू द अदर फीचर्स वो सबसे ज़्यादा था। ठीक है, सो यहाँ पे ये डिसाइड होने के बाद कि आपका रूट नोड क्या होगा, यहाँ पे और एक चीज़ हम करते हैं, तो ताकि आपको फर्दर स्प्लिटिंग में इजी जाए, हम एक एक थ्रेशोल्ड सेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, इन प्रैक्टिस वी नीड सम टर्मिनेशन क्राइटेरिया। ठीक है, मतलब कहाँ पे हमें ये जो स्प्लिटिंग है वो रोकना है। ठीक है, तो वो होगा आपका टर्मिनेशन क्राइटेरिया। तो टर्मिनेशन क्राइटेरिया मतलब कहाँ पे आपको आपका स्प्लिटिंग टर्मिनेट करना है। तो वो क्राइटेरिया हम कैसे डिसाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस when the coefficient of deviation, that is CV, or we can say here coefficient of variation for branches become smaller than a certain threshold. So here
consider 10% and or when too few instances n remains in the branch that is 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस पर्टिकुलर फीचर का अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अगर 10% से कम होगा या उस पर्टिकुलर फीचर्स में जो इंस्टेंस होंगे वो अगर 3 से कम होंगे या फिर 3 होंगे तो वहाँ पे हम स्प्लिटिंग रोक देंगे। ठीक है, तो जैसे ये हमने फर्दर स्प्लिट कर लिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरकास्ट की केस में हमने ये CV यहाँ पे कैलकुलेट कर किया है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस विच इज़ लेस देन 10%। तो यहाँ पे अगर ये 10% से लेस है तो हमें ये यहाँ पे डिसाइड करना है कि ओवरकास्ट जो आउटलुक का एक एट्रीब्यूट है उसको हमें और स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो डायरेक्टली आपका उसका मीन वैल्यू आपको एज आउटपुट मिल जाएगा। ये होगा आपका लीफ नोड जहाँ पे आपका आउटपुट मिलेगा और वो एक वैल्यू होगा क्योंकि हम रिग्रेशन का प्रॉब्लम देख रहे हैं। ठीक है, बट अगर आप सनी या फिर रेनी की केस में देखोगे तो यहाँ पे आपको CV का वैल्यू है वो 22 और 28 मिलेगा, मतलब जो कि 10% से ज़्यादा है, मतलब हम इन्हें और स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है और ये आप जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तब आपको ये पता चलेगा। नाउ हियर यू कैन सी ओवरकास्ट 8% है, हमने इसे यहीं पे रोक दिया और डायरेक्ट आपको एज अ आउटपुट उसका मीन मिल जाएगा जो कि ये है। ठीक है, और उसके बाद विंडी की केस में आप उधर फर्दर स्प्लिट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू फॉल्स कूल हॉट एंड माइल्ड। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये 1 बाय 1 समझना है। इस तरीके से ये जो डिसीजन ट्री है वो कंप्लीट होते जाता है इन केस ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द डिसीजन ट्री इन केस ऑफ रिग्रेशन। सो नाउ हियर विल गेट द न्यूमेरिकल आउटपुट, राइट, दैट इज ये मीन होता है, मीन है यहाँ पे। तो आपको ये एक वैल्यू एज आउटपुट प्रोवाइड कर देगा 47, 26, 38, 27.5, 41.5। सो यहाँ पे मेन आपको ये समझना है कि आप ये स्प्लिट कैसे कर सकते हो, आपको ये डिसीजन कैसे लेना है कि हम कौन से फीचर से स्प्लिट हम शुरू करें। तो उसके लिए हम न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि हम आगे क्लासिफिकेशन का भी एक न्यूमेरिकल देखेंगे जो डिसीजन ट्री से रिलेटेड होगा और एक रिग्रेशन का भी न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि डिसीजन ट्री से ही रिलेटेड होगा। सो क्लासिफिकेशन केस में हम एंट्रोपी और इन्फॉर्मेशन के बेस पे स्प्लिट डिसाइड करेंगे और इन केस ऑफ रिग्रेशन हम स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्शन के बेस पे उसे स्प्लिट हम डिसाइड करेंगे कि वो कैसे स्प्लिट होने वाला है या फिर डिसीजन नोड फाइंड हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज दिस इज द एक्चुअल विजुअलाइजेशन ऑफ डिसीजन ट्री। अगर आप एक्चुअल विजुअलाइजेशन देखना चाहते हो डिसीजन ट्री का तो आप ये बाय यूजिंग साइकिट लर्न जो एक पाइथन का लाइब्रेरी है वो यूज़ करके आप देख सकते हो, जिसमें प्लॉट ट्री करके एक फंक्शन आता है। वो फंक्शन यूज़ करके आप इस तरीके का डिसीजन ट्री आपको विजुअलाइज होगा जिसमें आपको सारी वैल्यूज़ मिलेगी। ये मीन स्क्वायर एरर की वैल्यूज़ है, नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं, वैल्यूज़ कितनी है, तो इस तरीके के आपको सारा डेटा उसमें मिल जाएगा और स्प्लिट वो कैसे हुआ है ये कंप्लीट डिसीजन ट्री आपको वहाँ पे शो होगा। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द डिसीजन ट्री इन केस ऑफ रिग्रेशन। सो यस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें इन दोनों केसेस के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन की केस में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।